Hello student, welcome to online math school. Standard 10th State Board Chapter 3 Circle Problem Set. Question number 8 is over, then question number 9. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो इन फिगर लाइन L touches the circle with center O at point P. Line L touches the circle at point P. Q is midpoint of the radius OP. OP का Q midpoint है. इसका मतलब है जितना भी OQ है उतना PQ है, right? RAS is a chord, right? Chord RAS and radius OP intersect at point Q. RAS parallel to line L दिया है हमें. If RAS is equal to 12, find the radius of circle. हमें सर्कल का रेडियस निकालना है. ओके चलो सॉल्यूशन. Let the radius of circle OS, you have to join here OS, that it is R. Line L is tangent, tangent is right, tangent is perpendicular to the radius, you know that. Therefore segment OP perpendicular to line L, tangent theorem. Chord RAS is also parallel to line L given. So this angle or this angle, that is OQS और OP, right? OP R जो भी आप लिखेंगे, दे बोथ द एंगल आर, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है. इसका मतलब OQ is also perpendicular to RS. QS is half of the RS, right? Perpendicular drawn from the center of the chord is bisect the chord. You know that. तो QS is equal to half of the RS. RS कितना है 12 है ना, तो उसका हाफ 6. QS is equal to 6. Also OQ you have to find. OQ is also midpoint, half of the what OP दिया है ना, right? Q is the midpoint of OP. Therefore what you get, ये टोटल OP R है तो R/2 आएगा. Q midpoint दिया इसलिए right, R/2, that 1/2 R is value of what OQ, as well as PQ is also same. अभी राइट एंगल ट्रायंगल OQS ले लो. What is Pythagoras theorem? OS square is equal to OQ square plus QS square. Substitute value, R square is equal to what, R/2 का स्क्वायर, और हाफ ऑफ R that is R/2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. QS 6 है ना, 6 का स्क्वायर. अभी R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 R स्क्वायर प्लस 36, राइट. 4 ने मल्टीपल करो इस टर्म को, दैट इज 4 को भी चलेगा, वैसे कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं. ऐसे ये देखो, ये प्लस है माइनस हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद, तो R स्क्वायर माइनस 1/4 R स्क्वायर इज इक्वल टू 36. 4 1 जा 4 माइनस 1, दैट इज 3/4 R स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 36, राइट. R स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 36 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, राइट. ये डिवाइड है, मल्टीपल हो जाएगा, ये मल्टीपल है, राइट. न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में जाएगा, राइट. ये सॉल्व करो ना. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो 12 इंटू 4, 12 4 जा 48, राइट. व्हाट इज R? R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 48. स्प्लिट करो इसका, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 48 ना, तो 4√3 आएगा आंसर. R इज इक्वल टू 4√3. देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू व्हाट, 4√3 सेंटीमीटर. हो गया. अगर यूनिट दिया है तो इधर यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ले लो, सेंटीमीटर नहीं दिया है तो यूनिट ले लो, राइट. आपकी मर्जी. क्वेश्चन 9 इज ओवर. क्वेश्चन 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट. क्या दिया है देखो, AB इज अ डायमीटर,
C is a center of a circle. Line PQ is a tangent. PQ line tangent है. Line LL, that is PQ, tangent at point T. Okay. AP perpendicular to line L, that is line PQ, tangent को perpendicular है. BQ is also perpendicular to line L, that is PQ tangent को perpendicular है. Prove that CP must be equal to CQ. Okay. Construction, join CT as well as CP as well as CQ. हाँ, क्या ज्वाइन किया पहले, वापस देखो. CT ज्वाइन करो, उसके बाद CP ज्वाइन करो, उसके बाद CQ ज्वाइन करो. क्या PQ is a tangent at point T given, therefore CTQ is 90 degree. CT is perpendicular to line L, CT is perpendicular to line PQ, so you can say that. Tangent perpendicular theorem. AP perpendicular to PQ, BQ is also perpendicular. इसका मतलब लाइन AP, लाइन CT और लाइन BQ, ये थ्री लाइन पैरेलल्स है. Line AP parallel to CT parallel to BQ. Okay. Three parallel line and transverse theorem, that is PT upon TQ is equal to AC upon BC. इसको रीजन लिखना है तो लिख लो. AP parallel to CT parallel to BQ, line perpendicular to the same line are parallel to each other. इसका मतलब क्या है, ये लाइन L है, AP परपेंडिकुलर है, CT परपेंडिकुलर है, BQ परपेंडिकुलर. इसका मतलब ये तीनों लाइन AP, CT और BQ parallel to each other. Okay. Three parallel lines and transverse theorem, that is AC upon CB is equal to what? PT upon TQ. Property of intercepts made by three parallel lines. But AC and BC radius of the same circle इक्वल है ना. इक्वल है, इसका मतलब रेशो क्या है, 1 है. AC अपॉन BC का रेशो कितना है, 1 है. ये ध्यान में रखो. AC BC इज नथिंग बट AC ना, तो AC अपॉन AC इसका रेशो डायरेक्ट सेम इक्वल है, तो 1 है ना. 1 इज इक्वल टू व्हाट, PT अपॉन TQ इज इक्वल 1. देयरफॉर PT इज इक्वल टू TQ. इसका मतलब क्या है, जितना भी PT है उतना हमें क्या मिला, TQ मिला. ओके. अभी दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, CTP एंड CTQ. नाउ इन ट्रायंगल व्हाट, CTP एंड CTQ, PT इक्वल टू TQ ऑलरेडी प्रूव फ्रॉम 1. एंगल CTQ equal to angle CTP, congruent is 90. CT congruent to CT कॉमन है. साइड एंगल साइड ये फोल्ड करो कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कौन सा CTP congruent to CTQ बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, SAS टेस्ट. ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट corresponding side also congruent, that is CP must be equal to CQ. CP must be equal to CP must be equal to CQ, corresponding side of congruent triangle. हो गया. क्वेश्चन 10 is over. Then question 11. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्या देखो, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर ABC, ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. हर एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है. सच दैट सर्कल टचेस ईच अदर. टू सर्कल टचेस ईच अदर. ये देखो ना, रफ डायग्राम मैंने निकाला. फर्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो मैंने 3 सेंटीमीटर 3 से रेडियस है, तो 3 ये देखो, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो BC कितना 6 आएगा, AC 6 आएगा, AB 6 है. इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है. पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालो. ये BC जितना है उतना ही ले लिया. वापस देखो, वापस इक्विलेटरल इतना और एक आर्क. सेम B एज अ सेंटर ड्रॉ आर्क
एज वेल एज सी एज सेंटर। इसका मतलब हमने पहले क्या निकाला, इक्विलेटरल एंगल्स निकाला हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर, क्या हैविंग साइड 6। अभी रेडियस कितना लेना है, 3 सेंटीमीटर लेना है, ले लो। टेक ए एज अ सेंटर, ड्रॉ सर्कल, समझ में आया। टेक ए एज अ सेंटर, कितना 3 सेंटीमीटर रेडियस ले लो, वापस देखो, एंड ड्रॉ सर्कल। देन टेक सी एज अ सेंटर, draw the another circle, same radius. Then B as a center, draw the another circle. All circle touches each other, right? हो गया, that's the question. Question number 11 is so easy question, हो गया. Then question number 12 is also अलग question है, फिर देखते हैं. Prove that 3 points on a circle cannot be collinear. अगर मैं सर्कल पर ए इधर एक पॉइंट लिया, सपोज ए इधर ले लिया और ए इधर ले लिया, बराबर, ए इधर ले लिया, बी इधर ले लिया, तो एक कोलिनियर है क्या, दिखता है क्या आपको, नहीं ना, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, गिवन पॉइंट ए बी सी आर एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ circles, you have to prove that A, B, C are non-collinear. Prove, suppose that A, B, C are collinear, तो A इधर मिल गया, B इधर मिल गया, C इधर मिल गया, तो ये इधर A, इधर B और इधर C ले लिया मैंने। ये एंगल कौन सा, स्ट्रेट एंगल है ना, स्ट्रेट एंगल है, इसका मतलब क्या, दे आर कोलिनियर। मैंने कोलिनियर लिया, इसलिए तो स्ट्रेट एंगल मिल गया, तो इसका मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। मेजर आर्क ए सी इज सेमी सर्कल 180 डिग्री, हाँ, अप साइड और डाउन साइड में, डेफिनेशन ऑफ सेमी सर्कल, राइट। सेमी सर्कल का डेफिनेशन कितना है, 180 है। ये जो सेंट्रल एंगल है वो आर्क का भी एंगल है, राइट, वो राइट। कॉर्ड ए सी इज अ डायमीटर, अगर ये सेमी सर्कल है 180 डिग्री मिल रहा है तो ए सी डायमीटर है ऑफ लाइन ए बी। अभी ये जो पॉइंट बी है, ए और सी की जगह ले लो, राइट। पॉइंट बी कोइंसाइड विद द सेंटर आइदर एट ए और एट सी, बट ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग है ना, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। क्या अजम्पशन है, ए बी सी कोलिनियर है, ये रॉन्ग है, तो नॉन कोलिनियर होना जरूरी है, हो गया, गेट्स योर आंसर। क्वेश्चन 13, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो क्या दिया, पी क्यू आर, ये लाइन दिख रहा है, ये टेंजेंट है एट क्यू, मुझे पी आर इज अ टेंजेंट एट क्यू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट। टी ए क्यू एस हे साइक्लिक क्वाड्रेटर है, व्हाट इज एंगल टी ए क्यू, टी ए क्यू, और व्हाट इज एंगल टी एस क्यू, हाँ, and what is sum, sum should be 180, you know that, because cyclic quadrator है। ATSQ is a cyclic quadrature, अपोजिट एंगल का सम कितना आएगा, 180, एंगल TAQ प्लस एंगल TSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फाइंड द एंगल कॉन्ग्रुएंट टू AQP, AQP, राइट, राइट। AQP इंस्क्राइब्ड एंगल है, वो AQ इंटरसेप्टेड आर्क है, तो दिस एंगल T एज वेल एज दिस एंगल ASQ, दे आर कॉन्ग्रुएंट एंगल, दे आर कॉन्ग्रुएंट एंगल, समझ में आया। देखते हैं, line PR is a tangent and AQ is a secant, right, tangent secant theorem,
AQP is half of the AQ. Theorem of angle between tangent and secant, right? Inscribed angle theorem ये. But ASQ is also same, half of the AQ, inscribed angle theorem. इसका मतलब राइट हैंड साइड सेम है ना, राइट हैंड साइड आपकी सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो सेम होना जरूरी है, राइट. देयरफॉर AQP is equal to ASQ. AQP is equal to ASQ. Also, right, ATQ is also half of the AQ. Similarly, we can say that angle ATQ is equal to AQP. We can prove. हो गया पहला पार्ट. QT is half of the QS, inscribed angle theorem. Okay. But SQR is equal to half of the SQ, theorem of angle between tangent and secant. इधर भी RHS सेम है, तो LHS must be equal, therefore QTS equal to SQR, right. Similarly, we can say that also QAS ये देखो और QTS ये भी इक्वल है, बिकॉज ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, राइट. इसके लिए ये भी इक्वल मिलेगा, तो आपको समझ में आएगा इसका QTS जितना है उतना QAS है. फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन इज ओवर. देन एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क. ओके, कोई बात नहीं. Therefore, here TS इंटरसेप्टेड आर्क है, TAS और TQS, राइट, सेम राइट, सेम आर्क पे क्या है, इंस्क्राइब्ड है, एंगल इन इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क. TQS कितना 65, तो TS भी कितना है 65. TQS is half of the TS, inscribed angle theorem. TQS is half of the TS, inscribed angle theorem. TQS 65 is equal to half of the arc TS. डिवाइड है तो मल्टीपल हो जाएगा 2, तो आर्क TS इज इक्वल टू 2 इंटू 65, दैट इज 130 डिग्री. आर्क TS इज इक्वल टू 130 डिग्री. AQP AQP ये दिख रहे हैं एंगल, हाफ ऑफ द आर्क AQ, टेंजेंट सेकंड थ्योरम. AQP कितना एंगल दिए 42, तो AQ आर्क उसका ट्वाइस 2 इंटू 42, दैट इज 84. SQR कितना दिए हैं 58. SQR इज हाफ ऑफ द SQ. कितना दिया है SQR 58 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द SQ. SQ जो 2 इंटू 58, दैट इज 116. हो गया. नाउ एंगल ATS इज हाफ ऑफ द AQS. AQ मालूम है आपको, QS मालूम है, राइट. ATS इज हाफ ऑफ द AQS. व्हाट इज AQS? AQS नथिंग बट AQ प्लस QS. AQ का वैल्यू कितना है 84, QS का वैल्यू कितना है 116. सब्स्टिट्यूट हियर,
84 प्लस 116, इसका एडिशन करो, इसका हाफ करो, हाफ इंटू वॉट 200, राइट, इसका मतलब 100 आएगा, दैट इज 80 इज इक्वल 100, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, in a figure O is the center of the circle, PQ chord PQ इक्वल टू कॉर्ड RAS, PQ कॉर्ड है उतना क्या है RAS है, ओके। ये सेंट्रल एंगल कितना है 70 है, इसका मतलब आर्क भी 70 आ गया, ओके। आर्क RAS कितना है 80 डिग्री है, तो PQ भी आर्क कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। सम ऑफ ऑल आर्क इज 360, 360 में 80, 70 और 80 माइनस करो, यू गेट द आंसर। सो इजी क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। मेजर आर्क पी आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर, डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, therefore measure arc PR is equal to 70 degree. Chord PQ is equal to chord RS, therefore arc measure arc PQ is equal to measure arc RS, but RS arc 80 डिग्री है तो PQ arc भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। नाउ आर्क QS प्लस आर्क PQ प्लस आर्क PR प्लस RS, सबका एडिशन आर्क PQ प्लस आर्क QS प्लस RS प्लस PR, सबका एडिशन कितना 360, सब्स्टिट्यूट करो। QS का वैल्यू हमें निकालना है, वैसे रखो मेजर आर्क QS 80 है, ये 70 है और ये 80 है, तो इसका एडिशन करो 80 प्लस 70 150 प्लस 80 230, ये प्लस होएगा वो माइनस हो जाएगा, 230 प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो मेजर आर्क QS इज इक्वल टू 360 माइनस 230 दैट इज 130, सब्ट्रैक्शन आपको आता है राइट। QSR इसका मतलब ये 130 प्लस 80 एडिशन करो, प्रॉपर्टी सम ऑफ द मेजर आर्क 130 प्लस 80 व्हाट यू गेट 230, हो गया राइट। 130 plus 80 that is 210, not 230, 210. Okay, question number 14 is over, then question number 15. चलो क्या क्वेश्चन है जरा देखो। इन फिगर आर्क WY इज इक्वल टू 44, ये आर्क कितने 44 है, मेजर आर्क ZX इज इक्वल टू 68, राइट। ये जो एंगल क्या निकालना है हमें ZTX, ये एंगल जो निकालना है ना, ये एंगल का वर्टेक्स T कहाँ पे है इंटीरियर में है, अगर इंटीरियर में है तो सम ऑफ दिस इंटरसेप्टेड आर्क डिवाइड बाय 2, राइट, हाफ ऑफ द सम ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, ये अपना फॉर्मूला है। चलो पहला वो देखते हैं। chord WX and chord YZ intersect at point T internally, angle ZTX is equal to half sum of this WY arc plus ZX, right, substitute the value 44 plus 60, इसका एडिशन करो और हाफ ने मल्टीपल करो, हाफ इंटू इसका एडिशन कितना आ गया 112, तो डिवाइड करो अभी 2 1 जा 2 5 जा और 2 6 56 आएगा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 1 कैरी 12 2 6 जा 12, राइट, तो 56 आपका आंसर आएगा 56, राइट। देन
अभी बोथ द कॉर्ड इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी इंटरनली, देयरफॉर अब आपको मालूम है डब्ल्यू टी इंटू टी एक्स इज इक्वल टू वाई टी इंटू टी जेड, राइट। और वैल्यू जो दिया है वो सब्स्टिट्यूट करो पहले क्वेश्चन 2 में, दैट इज थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड। 4.8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64 इंटू टी जेड। हमें टी जेड निकालना है, 4.8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 64 आएगा। डेसिमल आप क्या कर मूव करो तो 48 अपॉन 64, 8.0 दैट इज 8। अब ये सॉल्व कैसे करना है देखो ना, 16 4 जा 64 और 16 3 जा 48, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कैसे भी करो। 3 2 जा 6, क्या आंसर आ गया? 6 आंसर आ गया, राइट। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तीसरा देखो, तीसरे में अभी ये जरा मैं पूरा रिकॉर्ड हिलाता हूँ, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है देखो, डब्ल्यू एक्स कितना दिया है, डब्ल्यू एक्स टोटल 25 दिया है, वाई टी 8 दिया है, वाई जेड टोटल 26 दिया है। फाइंड डब्ल्यू टी, मालूम नहीं थी इसीलिए मैंने एक्स ले लिया। लेट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू टी इज एक्स, डब्ल्यू टी प्लस टी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, दैट इज एक्स प्लस टी एक्स इज इक्वल 25 ना। डब्ल्यू एक्स का वैल्यू 25 दिया है ना। डब्ल्यू टी का वैल्यू हमने एज्यूम किया है एक्स, ए प्लस एक्स है माइनस हो जाएगा, टी एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, ओके। ऑल्सो वाई टी इज इक्वल टू टी जेड, वाई टी प्लस टी जेड इज इक्वल टू वाई जेड। सब्स्टिट्यूट करो, वाई जेड का वैल्यू 26 है ना, डाल दो। 8 प्लस टी जेड इज इक्वल 26, टी जेड इज इक्वल 26 माइनस 8 दैट इज 18, राइट। अभी ये देखो, बोथ द कार्ड इंटरसेक्ट ईच अदर एट इंटरनली, देयरफॉर वाई टी इंटू टी जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू टी इंटू टी एक्स, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। डब्ल्यू टू इंटू टी एक्स इज इक्वल टू वाई टी इंटू टी जेड, ओके। सब्स्टिट्यूट वैल्यू, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। चलो, x इंटू 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 18, 8 18 जा 144, तो ये इधर मल्टीपल करो, x इंटू 25 25x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये मल्टीपल भी आना जरूरी है, दैट इज 25x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, राइट। ये एक्स स्क्वायर यहाँ के उधर गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 25x है माइनस हो जाएगा, प्लस 144 एज इट इज, राइट। प्रोडक्ट इज 144, राइट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना है। प्रोडक्ट इज 144, एडिशन इज माइनस 16, दैट इज 16 9 जा माइनस 16 माइनस 9, ये स्प्लिट हो गया, राइट। म्हणजे माइनस 25x इज नथिंग बट माइनस 16x माइनस 9x, ये आना बहुत ज़रूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 8th स्टैंडर्ड से सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें फैक्टर मिलेगा। क्या फैक्टर, ये कैसा है बताता हूँ आपको, एक 1 मिनट। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144, मैंने डायरेक्ट लिखा है लेकिन आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है दिखा दो। प्रोडक्ट कितना है 144, एडिशन शुड बी व्हाट माइनस 25, दैट एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9x, 16 माइनस 16 माइनस 9, दैट इज इसका हम क्या किया, मिडिल टर्म का एक्सपेंशन, राइट, प्लस 144 एज इट इज। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। ये दो ग्रुप मिले,
पहले ग्रुप से हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं, x, तो अंदर क्या रहेगा x माइनस 16, दूसरे ग्रुप से -9 कॉमन निकालो तो अंदर क्या रहेगा, इधर x, ये प्लस का -n हो जाएगा और 9 ने 144 डिवाइड करो 16 मिलेगा, राइट। अभी फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 16 और सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 9, दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स। ये हमें फैक्टर मिल गया, राइट, मैंने इधर फैक्टर लिख लिया है, राइट, ये फैक्टर डायरेक्ट लिख लिया, तो ये डायरेक्ट मत करो, ये ऐसा सॉल्व करो, ओके। तो x माइनस 16 इज इक्वल टू, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, therefore x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 9, दैट्स योर आंसर, हो गया। therefore yt is equal, sorry, wt is equal to 16 और wt is equal to 9 units, that's your answer, हो गया। थैंक यू माय डियर्स।